let us write down the reaction. 1.84 grams of dibromide of metal M. Metal bromide. MBrN. Dibromide of metal dibromide बोला है ना, means this is 2 on reaction with AgNO3. It is giving you MnO3 plus AgBr. बैलेंस करते हैं, this will become 2 2. This is ये कैसे 2 आया? इसका M का वैलेंसी 2 है ना, ऑल ऑफ यू. M is +2 and Br is -1. तो मेटल डाइब्रोमाइड बना. तो सेम M is +2, nitrate is -1, so it will become MnO3 twice. Yes. So now this is 1.84 gram. And it is giving you, it is giving you 3.76 grams of yellow precipitate. AgBr forms yellow precipitate. Yellow precipitate is formed by AgBr. AgBr ही आएगा. So this is 3.76. So now we can write now 1 mole of MbR2 is giving you 2 moles of AgBr. So इसका मोलार मास कैलकुलेट करने का, मोलार मास ऑफ MgX. ब्रोमीन का दिया है यहाँ पे मास 80 दिया है ना, 2 into 80 will give you 2 into 108 plus 80. 1.84 will give 3.76. Cross multiply.
समीश कैलकुलेट करो, चलो फटाफट। Are you getting it? ट्वेंटी फोर आता है ना आंसर? ओके, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट के मेथड से करने की क्या जरूरत है? दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि AgNO3 इज इन एक्सेस। ओके, मिस मुझे आंसर अलग आया, मतलब मुझे 184 आया। 184 आया, बट 180 मीन्स मैंने जो दिया है वो मेथड से। हाँ मिस, मतलब अगर हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लेंगे तो एंड में जाके आपका वाला मेथड ही आ जाएगा वापस। तो हाँ, मिस उससे मेरे को 184 ही आ रहा है। ये एक्सेस है और ये लिमिटिंग है। मिस लेकिन हम लोगों को तो मतलब पूरा MBr2 का फाइंड करना है ना, सिर्फ M का नहीं करना ना। ओके ओके, सो मोलार मास ऑफ मेटल ब्रोमाइड, यस। हाँ मिस, तो मतलब हम लोग को Br2 के जगह भी X MBr2 ही लेना है। कैलकुलेट करना है, सो 24 प्लस 160, so now it will come na 184. Next is question number 8. Question number 13. अभी ये यहाँ पे जो दिया है ओलियम सैंपल रेट, सॉरी, 50 grams of oleum sample rated as 1118% is mixed with, ये जो है ना लेवल 118%, questions are not in clear. We'll just skip this question. किसने किया ये क्वेश्चन? मीन्स कैसा है, ठीक है मैं बता देती हूँ, बट इट इज नॉट देयर। 118% indicates that 100 grams of water, 100 grams of 100 grams of sample
will have 18 grams of water. Okay. तो तुम्हारा 50 ग्राम्स है ना सैंपल ओलियम, तो इट विल हैव हाउ मच? 9 grams of water. So 9 grams of water is in one option, B option. Yes. बट ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को नहीं है. एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन 9. Question number 9. The following process has been used to obtain iodine from oil-filled brines in California. How many grams of AgNO3 are required in first step for every 250 kg of iodine produced in third step? तो अभी अपने को उल्टा जाना पड़ेगा. So now they have given iodine कितना है 254 kg, that is 254 into 10 raised to 3 grams. See, first I take this reaction. I will write 2FeI2 is giving you 2I2. 2 moles of FeI2 is giving you 2 moles of I2. फिर इसका मोलार मास 2 moles यानी 2 into Fe is 56 plus 2 into 127, that is the atomic mass of iodine, is giving you 4 into 127.
तो इसका मास दिया है 254 into 10⁻³ will give how much? Cross multiply. Two into 127. 620. 254. Three ten into 10⁻³. Okay, so I have got the mass of this 310 into 10⁻³. Now I'll take this reaction. Two moles of FAGI give 1 mole of FeI2. So now 2 into 108 plus 127, and this is P10. एक मिनट है, इसका मास कैलकुलेट करती हूँ मैं. 470. 127 into 2 plus 56. So इसका मास कितना आया है नीचे वाले रिएक्शन में? It will give how much? So now I have got the mass of this. Now I'll use this reaction to calculate mass of AgNO3. So 1 mole of AgNO3 gives 1 mole of AgI. This is 108 plus 14, and this is cross multiply. Yes, all of you correct the answer. Okay. Yes, all of you, have you understood this? है ना सब लोग? हाँ मिस, तीन आंसर आए, फिर करना का क्या? 340 kg आ गया आंसर. क्या बोला?
हाँ मैं इस ग्राम्स में आंसर देना था। ग्राम्स में रहेगा तो इसको ले लो, केजी में रहेगा तो इसको ले लो। ग्राम्स में चाहिए ना। यस मिस। सो फर्स्ट व्हाट दिस वाज गिवन, ठीक है, ये दिया था, इसलिए मैंने पहले इसका मास निकाला। इसका ही क्यों निकाला? क्योंकि ये रिएक्शन में यही रिपीट हो रहा है। तो इसके मास से मैंने इसके थ्रू ये कैलकुलेट किया। ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि दिस इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रिएक्शन। फिर इसके थ्रू मैंने AgNO3 कैलकुलेट किया। ओके। So I think your doubts are over of concept application 5. Now Leron का doubt है state level का second one. In the final answer of the expression, the number of significant figures is. ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लेरॉन। ये किया पूरा सॉल्व? हाँ मिस किया था, लेकिन रफ पेज पे हाँ वो ठीक है, बट आंसर करेक्ट नहीं आया। नहीं आया इसलिए। पहले हम लोग माइनस करेंगे ना। हाँ 29.2 माइनस 20.2 3.2 9 9 यस into 1.79 into 10⁵. 16.11 divided by 1.37 11.75 into 10⁵ बराबर ना। यस मिस, मतलब वो 10⁵ काउंट नहीं करना होता है ना साइंटिफिक में। हाँ यस। ओके हाँ, इसलिए मेरा लगता है रॉन्ग होता 7591 into 10⁵। फिर क्या है इसका आंसर? है। इसका आंसर मिस 2 है। 11.72 है आंसर। हाँ यस निखिल, व्हाट यू आर सेइंग? हाँ मिस मिस मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग पहले जो मतलब पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें आंसर 9.0 आता है। हाँ मिस तो हम लोग मतलब उधर से ही डिसाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग वैसे ही देखते कि मतलब ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर हम लोग लेते हैं। तो 9.0 में 2 है मिस, इसलिए इसका आंसर 2 आ जाएगा। यस सो वी हैव डन इसके रूल्स ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल्स फॉर ओके ओके सिग्निफिकेंट ओके फिगर। तो वहां पे था ना कि मीन्स जो ज्यादा प्रिसाइज है उसका सिग्निफिकेंट नंबर एंड आंसर का सिग्निफिकेंट नंबर विल हाँ हाँ मिस याद आया। ओके मिस वैसे है। बी। नेक्स्ट कौन सा है? 11 11th 250 ml of sodium carbonate contains 2.5 2.6। हाँ ठीक है, ये अभी अपना बाकी है करना। ओके मिस 15 in a reaction 1 mole of ammonia are meant to। ये क्यों नहीं आया तुम्हें? ये तो लिमिटिंग और एक्सेस से करना है। So if you have a reaction 4NH3 plus 5O2 is giving you
4NO प्लस 6H2O, तो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, दोनों का दिया हुआ है यस डेटा। विल कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग एंड एक्सेस मेथड ना। हाँ तो हाँ ओके मिस समझ गए। यस यस गॉट इट। कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1NO आएगा। नाउ 5O2 is giving you 4NO, then 1 will required how much? 4 by 5, that is 0.8NO. So who is limiting? 0.8। This is limiting reactant Yes, and this is excess reactant. got it। So all oxygen will get consumed. Next is 17. ये यूनिट ऑफ, ये तो तुम्हें केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन। ओके उसको कन्वर्ट करो जूल पर पास्कल को, क्या आएगा इसका आंसर देखो। ये तुम लोग जो फिजिक्स में किया है, ये है ना। डायमेंशंस ना। हाँ, ये सर केमिस्ट्री सिता में है। नहीं है, ये केमिस्ट्री में नहीं है। डायमेंशन मेथड होता है ना, उससे सॉल्व करना है। हाँ चलो, तो मिस इफ वी आर 20 और नाउ 20 ऑल्सो। 27.5 grams of gas occupy 5.8 liters volume at STP. The gas is, you have to calculate the molar mass. So we know 1 mole of gas at STP is equal to 22.4 2.4 liter यस and 1 mole is equal to molar mass. बराबर करेक्ट। ना। हाँ तो क्वेश्चन में दिया है 7.5 grams are occupying the volume of 5.8 liters. तो 22.4 लीटर्स के लिए कितना मिलेगा मोलार मास? ओके हाँ हाँ करेक्ट। ये करोगे सॉल्व। हाँ ओके अभी चेक करो कौन से कंपाउंड का मास 28.96। हाँ ओके। कौन से कंपाउंड का मास इसके साथ मैच करता है, चेक करो। NO। हाँ 14, NO ही होगा। 14 and 16। यस क्लोजेस्ट होगा मतलब। yes, so you can write it 39, 29 sorry। CO 12 plus 16 28। CO भी हो सकता है। क्या है, क्या आंसर? वेट लेट मी। ए है, ए। NOMS। मिस लेकिन कैसे? अभी ये 22.4 नहीं लेने का, 22.414 लेने का, तो और एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके ओके मिस। तो नाउ Is 25। हाँ 25। 2.76 grams of silver carbonate on heating strongly yield
residue weighing how much? Silver carbonate, AgCO3. Ag2CO3 gives you AgO plus CO2 ना, तो ये प्रेसिप्ट होता है, इसको बैलेंस करते हैं। मिस अभी आ जाएगा, मैंने इक्वेशन ये रिएक्शन गलत लिया था। बैलेंस देखो, करो बराबर से, हो रहा है क्या बैलेंस? क्यों आया ना, तो इधर भी रिएक्शन बराबर है ना मेरा। बैलेंस ना, now you can do further. Yes, Yes. एक दिया है 2.76 and you have to calculate the mass. Ag is 108. Okay, इस बार आपने ये O2 अलग से क्यों लिया वापस? वो बैलेंस नहीं हो रहा है रिएक्शन ना। तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मीन्स कैसा होता है कि कार्बोनेट है, मीन्स ऑक्स, अभी जैसे CaCO3 है बराबर, ये अपने को क्या देता है, CaO प्लस CO2 देता है। बट अगर हम लोग इसको और हीट करते हैं तो ये भी तो डिकम्पोज होता है ना Ca प्लस O2 में, तो हाँ, मैंने इसको और डिकम्पोज कर दिया। पर ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है ना हर एक ऑक्साइड के लिए। अच्छा, ओके। कि अभी जैसे तुम्हारा रिएक्शन है KClO3 इज गिविंग यू KClO2 प्लस O2, ठीक है। आफ्टर सर्टन टेम्परेचर ये भी डिकम्पोज होता है KCl प्लस O2 में, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, अलग टेम्परेचर पे KCl प्लस O2, फिर इसको बैलेंस करना है। ओके मिस। जब कभी भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं एंड अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम लोग ने कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट लिखा है, तो अपने को थोड़ा चेंज करके हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आ गया था सबको होमवर्क में। यस निखिल, हैव यू सॉल्व्ड इट इन होमवर्क क्वेश्चन? यस मिस। कितना आया आंसर? मिस एक्चुअली मुझे रिएक्शन ही नहीं आई थी, तो मैंने फिर सॉल्व किया था, मैंने रिएक्शन गलत लिखा, मैंने AgCO3 और Ag एंड CO2 लिखा। हाँ मिस, मैंने भी यही रिएक्शन लिखी थी। अभी करो, चलो आंसर फाइंड करो और मुझे बताओ फास्ट।
मिस 2.16. ओके, करेक्ट है ना आंसर? चेक किया ना? वेट लेट मी चेक. यस मिस वही है। हाँ मिस वही है. और हो गया? हाँ इतना ही है. नहीं मिस मुझे 28. चेक और 28। हाँ मुझे भी 28. The number of gram atoms of oxygen present in 0.3 moles of oxalic acid. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोला है कैलकुलेट करने के लिए. तो 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, या ऑक्सैलिक एसिड है, कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4 ना? यस. और तो 1 मिस मोल ऑफ मिस ऑक्सैलिक 6 है ना? एसिड हाँ मिस 6 है. 6. तो कितना मास है? 6 ऑक्सीजन एटम यानी 16 6. यस 96. So now you can calculate number of तो 1 मोल में इतना है, तो 0.3 moles of oxalic acid will have how much? 0.3 दिया है ना? यस So 96 into 0.3 कितना होता है? करो. 28.8. So now you can calculate number of gram atom. फॉर्मूला दिया है ना ग्राम एटम का तुम लोग को? यस मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इन ग्राम. So this is 28 upon 8 and 16. कितना आता है चेक करो. अराउंड 1.8। हाँ अराउंड 1.8. करेक्ट है? यस वेट लेट. हाँ मिस करेक्ट है. हाँ मिस 1.8 है. ओके. And anything else? नो मिस. So now all of you, let's start with our new topic. Means we are going to continue that which we have started. That was the concentration of solution. So next method है molality. Molarity. Molality is already done in last lecture. Now we'll do Molarity are different. Yes, molarity and molality is different. It is denoted by capital M. Okay. So molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liters. तो सपोज तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में नहीं रहेगा, ml में रहेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Yes. ओके. Yes. तो नाउ इसका यूनिट क्या आएगा? मोल पर लीटर. Liter. मोल पर लीटर. Liter. और यू कैन से इट मोलार. कैपिटल.
को। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट molarity of H2SO4 solution having mass of 20 gram in 250 ml. So molarity is number of moles of solute. कितना आएगा 20/98 बराबर ना मोल्स यस मिस in divide by volume of solution that is 250 ml. सबको समझा क्या ये कि मैं एकदम स्टेप वाइज करूं? मैंने डायरेक्ट किया। नहीं समझा मिस। सी पहले मैं मोल्स निकालूंगी, मुझे मोल्स चाहिए ना सल्यूट का। H2SO4 is moles, H2SO4 is सल्यूट, तो इसका मोल्स निकालना है 20/98। फिर सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में मोलैरिटी के 20/98 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml। ml में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई। यस टू टू जा टू फोर जा 9 जा 40 divided by 49। Do this fast। 10 0.82. यस मिस 0.816 और 0.82 आ रहा है। मतलब 6 है वो राउंड ऑफ करके 2। 0.82 मोलर। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। So now in homework you will solve Archives. Huh? Archives is in homework. Page number मैं 58. सब ओके पेज नंबर 58. ओके मिस फुल आर्किव मिस 33 questions. Done. Next question करते हैं। मिस फुल आर्चिव। हाँ 33 तक है। So now question is calculate mole fraction, molality and molarity
of 15% H2SO4 density of H2SO4 solution is 1.020 gram per centimeter cube. So now मैं तुम लोग को मोलैरिटी बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है and you will tell me the answer of mole fraction and molality. Okay? Okay. So pay attention. पहले मैं बताती हूँ मोलैरिटी कैसे निकालते हैं. यहाँ पे ध्यान दो. 15% यानी 15/100 बराबर ना. So 15 grams. This is the mass of H2SO4 and 100 gram. This is the mass of solution. Yes, all of you. Yes. तो मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए. मोल. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने का. मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो मोल्स तो मेरे आ जाएंगे ना 15 डिवाइड बाय 98. यस ऑल ऑफ यू. अभी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूं मैं. वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है. बट वी हैव मास ऑफ सोल्यूशन एंड वी हैव डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. यस ऑल ऑफ यू. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन is mass of solution upon density of solution. Now we'll substitute this. पहले 15/98 कितना आता है चेक करो. जीरो 0.15. 0.15 डिवाइड बाय 10. और ये किस में आएगा यूनिट. इसका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है. सेंटीमीटर क्यूब है इसीलिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.15 ये कैंसिल हो गया. 10 और ये ऊपर आ जाएगा ना. Yes. तो ये कितना आएगा बताओ. मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ. वन 1.53. 1.53. Okay, all of you. Yes, miss. Yes, miss. So now you can calculate molality and mole fraction. Okay. Yes, miss.
क्या हुआ? मिस 1 मिनट। सिर्फ निखिल का आया है मुझे आंसर यहाँ पे। यस, लेरॉन का आंसर आया, सौम्य का आंसर आया। बाकी सब क्या कर रहे हैं? समर्था, लवनीश, मोलालिटी। निखिल रॉन्ग है मोलालिटी तुम्हारा। लेरॉन एंड सौम्य इज गेटिंग करेक्ट आंसर। चेक करो निखिल। और वो जो मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन केजी। हाँ, Yes, misunderstood. यस रुचित, योर आंसर इज करेक्ट। निखिल फिर भी बहुत डिफरेंस है तुम्हारे आंसर में। यस, अदर्स कैलकुलेट फास्ट। यस सौम्य, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन करेक्ट है। यस ऑल ऑफ यू पे अटेंशन हियर। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यस। सो अगर 15 ये यहाँ पे दिया है, टोटल सोल्यूशन 100 है, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 15 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा?
85 होगा ना? यस तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? 0.15. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 85. But this is in grams, so you have to multiply by 1000. कितना आता है ये? 1.7. Now mole fraction. आया चलेगा ना? हाँ. Mole fraction of H2SO4 is moles of H2SO4 plus moles of water. So this is 15/98. तो लास्ट टाइम का रिवीजन ही नहीं करके आए, इसीलिए नहीं आ रहा है करने के लिए. So all of you write down each and every step very properly. Because next question same ऐसा ही देने वाली हूँ मैं फिर. अच्छा 0.013 मोल फ्रैक्शन है ना? Yes. It's done now. Chalo, next question. yes. Yes, all of you do it fast. 5 minutes time. Okay, miss. Okay.
Yes, all of you do it fast. Yes, miss. Yes, miss. लवनीश 0 पॉइंट, ठीक है, करेक्ट है लवनीश। मोल फ्रैक्शन आगे करो। ये सौम्य मोलैरिटी करेक्ट है। आदिन इतना बड़ा मोलैरिटी नहीं होता है, रॉन्ग है आंसर। निखिल अगेन यू, व्हाट इज दिस? मोलैरिटी है आई थिंक तुम्हारा ये, एंड अगेन यू हैव डन सेम मिस्टेक। Yes, Rang, I'm going to do it. Let me check out who all can solve. Because इसके पहले वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही था। मिस 1 मिनट। Yes, Lavnish, molality is correct. मिस मेरे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मोलैरिटी का बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है। So send the solution. ओके मिस, आई Send it to me. मेरा मोलालिटी राइट है। Soumya correct. Leron correct. भेजो लवनीश, तुम्हारा सोल्यूशन भेजो तो मुझे पता चलेगा where you are doing mistake. Yes, Leron, it is correct. Nikhil correct. Leron correct है। ओके मिस। Yes, Rajiv, it is correct. Good. Nikhil, now it is correct. सौम्य मोल फ्रैक्शन रॉन्ग है। Yes, लवनीश करेक्ट है।
तो 10%. 10% indicates 10 upon 100. बराबर ना? This is gram, this is gram. Yes, miss. It is the mass of NaOH. Correct. And this is the mass of solution. Yes. Which molarity wrong है. Yes, Nikhil, it is correct. So now first molarity calculate करते हैं. Formula लिख लेती हूँ मैं. Number of moles of solute upon. Yes, सौम्य correct है. Upon volume of solution in liter. तो moles of solute कितना आएगा? मास है 10 और मोलर मास 40. 0.25. अभी वॉल्यूम तो दिया नहीं है, बट डेंसिटी दिया है, मास दिया है. सो मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. मास कितना है सोल्यूशन का? 100. 100. डेंसिटी कितना है? 0.987. Yes. So we can calculate molarity. Yes. हंड्रेड और ये ऊपर चला जाएगा ना, इंटू 1000 भी करना पड़ेगा ना, ये ml में है. Yes. तो ये कितना आता है? 2.46 आता है ना. Yes. इसको चाहिए तो तुम लोग और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो. 0.25 को 1/4 रखो तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा. ये 1 और ये 4. इसको ये 2 सा 5 सा. जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट 2.46. अभी नेक्स्ट मोलैलिटी. तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट जो अपने पास ऑलरेडी है अपॉन मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट. solution. Solvent. तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 है, सल्यूट 10 है, तो सॉल्वेंट कितना 90. होगा? 90. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 0.25 अपॉन 90 ग्राम से, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई. तो ये कितना आता है? 2.7 आता है ना. यस. हाँ. 2.77. हाँ. मोल फ्रैक्शन. मोल्स ऑफ सोल्यूट अपने पास ऑलरेडी है. मोल्स ऑफ वाटर चाहिए. दैट इज 90 अपॉन 18. कितना होता है? 5. करेक्ट ना? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH will be how much? 0.25 upon 0.25 plus 5. Yes. Which is equal to 0.047. Okay, all of you. Yes, miss. Yes, miss. अभी नेक्स्ट मेथड है, दैट इज नॉर्मेलिटी. मिस एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना प्लीज. हाँ, मिस प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना एक सेकंड.
Okay, miss. Got it. Normality. Normality is number of gram equivalent upon volume of solution in liters. Okay. If volume of solution is in liter, if volume of solution is not in liter, if in ml or centimeter cube, we have to convert it. So multiply by 1000. अभी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने का? That is equal to mass given upon equivalent weight. Upon equivalent weight. Okay, all of you. Okay, miss. इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, और यू कैन call it normal. Write it down. We'll do some questions on this. Done. Miss, 1 minute. Done. So if question is calculate normality of, सबको इक्विवेलेंट वेट आता है ना कैलकुलेट करने के लिए? Yes. Calculate normality of H2SO4 having 100 gram mass. In 50 ml of solution. करोगे कैलकुलेट ऑल ऑफ यू? सबसे पहले Yes. नॉर्मेलिटी लिखने का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना? तो मास Yes. कितना है? 100 है. इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा H2SO4 का? बताओ मुझे सब लोग. We have already done ना equivalent weight का concept. Miss 49. Correct. It will be 49. So क्या आएगा? All of you, equivalent weight of acid. Formula क्या है? Molecular weight divide by basicity.
So 98 divide by 2 na? Yes, all हाँ of you. yes. Q2. Why 2? Because there are 2 H2 molecule. 49. तो अभी सब्स्टिट्यूट करो 100 अपॉन 49 इंटू कितना है वॉल्यूम 50 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. करो कैलकुलेट. क्लियर? Yes. ठीक है. सो नाउ ऑल ऑफ यू यू टेक ब्रेक एंड देन हम लोग ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे. तो वी हैव डन विथ ऑल मेथड्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो अभी हम लोग इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस ब्रेक के बाद करेंगे. एक ब्रेक ऑफ इस वॉल्यूम पे डिवाइड ही नहीं किया. क्या किया ना 2000 डिवाइड बाय 49. हाँ हाँ ओके ओके गॉट राइट राइट. हाँ सही है समझ गया. 15 minutes break, all of you. Yes.